Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is the Squire of Chaucer. In classical poetry, it is Geoffrey Chaucer, and that is a poem, second poem, into the Prologue to the Canterbury Tales. The Squire. First see the reading, and after reading I will translate it for you people into Urdu. Okay. The Squire. With him there was his son, a young squire, a lover and a lusty bachelor. With locks curled, as they were laid in press, of 20 years of age he was, I guess. Of his stature he was of even length, and wonderly deliver and great of strength. And he had been some time in Quebec, and Flanders, and Ortis, and Picardy, and borne him well as of so little spaces, and hope to student in his lady grace. Embroidered was he, as it were a meat, all full of fresh flowers, white and deep. Singing he was, or flouting, all the day. He was fresh as is the month of May. Short was his gown, with sleeves long and wide. Well could he sit on horse and fair ride. He could songs make and well indite, just and eke dance and well portray and write. So hoot he loved, and by nightingale, So hoot he loved, that by nightingale he sleep no more than doth nightingale. Courteous he was, a lolly and serviceable, and cough before his fodder at the table. Squire is actually young man. He is a young nobleman. We can say Squire, a young nobleman. Squire is also zamindar ko bhi kehte hain, landlord ko squire. Here the meaning is young man, gay young man, happy, healthy young man. Here the meaning of squire. Actually, Squire is the son of night. And you have to check how Chaucer will treat this person. At the same time, he will not condemn his all beauties of youth. At the same time, he will also mildly satirize this person कि नाइट का बेटा होकर इसके मिजाज और इसके मैनर्स कैसे हैं, ये भी बात करेगा. क्लियर? आइए, जैसे देखता है वैसे बयान कर देता है. दैट इज द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ जेफरी चासर. विद हिम देयर वाज हिम. हु इज हिम? हिम इज नाइट. नाइट के साथ मौजूद है हिज सन, उसका बेटा, अ यंग स्क्वायर. He was a young squire. He was a young man, a lover and a lusty bachelor. He is lover and he is lusty. हवस रखने वाला बैचलर है, यंग मैन है. With locks curl, उसके बाल जो है खरली हैं, सारे बाल घुंघराले बाल हैं उसके. As they were laid in press, जैसे कि बालों को प्रेस के अंदर किसी प्रेस के अंदर दबाया गया हो. उसके बाल इतने कर लिए हैं जैसे सारे बालों को पकड़ के किसी प्रेस के अंदर किसी वजन की जगह रखा गया हो और उस प्रेस में से निकाला गया, ऐसे कर लिए. लेकिन these are tough, rough, too much curly hair are over there. जैसे किसी मकरानी के होते हैं बाल, अगर आपने देखे हैं, या किसी नीग्रो के हो सकते हैं बहुत ज़्यादा करली हेयर. और अगर कोई यंग इंग्लिश मैन है और उसकी हेयर अगर करली है, हाउ ब्यूटीफुल ही विल बी. सो दिस मैन इज विद द हेड, दैट इज अ करली हेड. Of 20 years of age he was, I guess. और मेरा अंदाजा है इसकी उम्र तकरीबन 20 साल होगी. Modern attitude is that कि nothing is affirmed. कोई चीज भी solid नहीं है. Everything is assumed and approximately we can assume it. अंदाजा कर सकते हैं. And he is also telling that मेरा गेस है कि उसकी उम्र 20 साल होगी. अगर ये
किसी आइडिया का गेस नहीं कर रहा, किसी थ्योरी का गेस नहीं कर रहा, तो हमें ये यकीन है कि कहीं ना कहीं कह रहा है जेफरी चासर कि मेरा अंदाजा है। तो सीड्स मौजूद है मॉडर्निटी के जेफरी चासर के अंदर भी। एक जगह पर जेफरी चासर कहता है, कहते हैं माई विट इज शॉर्ट, यू मे वेल अंडरस्टाउंड। कहते हैं मेरी अकल थोड़ी है, आप बेहतर समझ जाएंगे, आप बेहतर समझते हैं। दैट इज ऑल्सो क्वाइट मॉडर्न एटीट्यूड। Of his stature he was of even length, he was a long man and wonderfully delivered, and he is हैरान कुन हद तक वो deliver active है, and great of strength, and he is a powerful person, muscular है, and he had been some time in Kawaki, and he also took part and passed an expedition, तो उसने expeditions में हिस्सा भी लिया है। उसने कुछ एक्सपीडिशंस में, नीम के कुछ जंगों में हिस्सा भी लिया है, जैसे कि जंगें थी खैवाकी के अंदर रहा है वो। सॉरी, खैवाकी का मतलब भी एक्सपीडिशंस होता है, खैवाकी का मतलब भी कोई कारनामे, कोई एडवेंचरस डीड्स होता है। एंड फ्लॉन्ड्रस, एंड ही वाज आल्सो इन फ्लॉन्ड्रस, दैट इज द नेम ऑफ अ प्लेस। ये फ्रांस का नॉर्दर्न प्रोविंस है, फ्रांस का इलाका है फ्लॉन्ड्रस, उसमें रहा है। एंड आर्टोस में रहा है। एंड पिकार्डी, एंड ही आल्सो वेंट इन पिकार्डी टू फाइट अ वॉर, एक वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 कंट्रीज में जा चुका है। ही इज अ यंग वन, लेकिन वो क्योंकि नाइट का बेटा है इसलिए उसने जंगों में हिस्सा लिया जरूर है। एंड बोर्न हिम वेल मीन ही फाउट वेल हिज वॉर अच्छे तरीके से लड़ी है उसने। As of so little spaces, हालांकि उसके स्पेसेस थोड़े हैं, स्पेसेस मीन ईयर्स थोड़े हैं, मीन उसकी एज अभी थोड़ी है, लेकिन उसे जंगे फिर भी अच्छी लड़ी है। एंड होप टू स्टर्नन इन हिज लेडी ग्रेस, एंड होप टू स्टर्नन, और वो इस उम्मीद के साथ ठहरता है कि वो अपनी लेडी की ग्रेस लाजमी जीत जाएगा, यानी कि ही इज कॉन्फिडेंट वन टू ग्रैब द फेवर ऑफ अ वेमन, किसी भी वेमन की, किसी भी बिलवेड की, किसी भी लड़की की वो फेवर गेन कर सकता है, उसके अंदर ये पावर ऑफ स्टे है, अच्छी उम्मीद में है। स्टूडेंट का मतलब स्टैंड, ठहरना। एम्ब्रॉयडर वॉज ही, दैट इज अ ब्यूटीफुल कपलेट एंड एज वेल एज इम्पोर्टेंट वन। एम्ब्रॉयडर वॉज ही, और उसके सारे कपड़े एम्ब्रॉयडर थे, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, सारे कपड़ों पर फूल नक्श निगार बने हुए हैं। एज इट वर अ मीट, ऐसे लगता है जैसे उसके कपड़े पूरी एक चरागा सब्जाजार हो, जैसे कि पूरा का पूरा एक गार्डन हो, जैसे उसका पूरा का पूरा लिबास। ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर्स वाइट एंड रेड, और तमाम के तमाम कपड़े उसके फ्रेश फ्लावर से भरे हुए हैं, वाइट फ्लावर्स बने हुए उसके ऊपर और रेड फ्लावर्स बने हुए हैं, यानी कि बड़े बड़े फूल बने हुए हैं और बिल्कुल फ्रेश रेड, फ्रेश वाइट कलर के फूल हैं जो उसके कपड़े पहने हुए हैं। दैट इज क्वाइट फैशनेबल ड्रेसेस आर देयर, और ऐसा लगता है कि पूरे जिस्म के ऊपर जैसे मीट है। आपने नाइट को देखा था, हाउ कंट्रास्ट इज ओवर देयर। नाइट के कपड़े वो मैले थे, दब्बे वाले थे, और दैट वाज शॉर्ट कोट वाज ओवर देयर, जीरा थी। ऐसे कपड़े जो हैं यंग मैन को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज अ एप पर्सन। 20 ईयर्स में जिस तरह एक शख्स के गे मैनर्स होने चाहिए वैसे मैनर्स हैं उसके, और बिल्कुल ठीक आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की गई है। 14th सेंचुरी है, ये भी सोचिए साथ। सिंगिंग ही वॉज, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू सिंग, हर वक्त गाता रहता था, और फ्लोटिंग या फ्लूट पर कोई धुन बनाता रहता। ऑल द डे, तमाम दिन। ही वॉज अ फ्रेश एज इज अ मंथ ऑफ मे, और वो इतना फ्रेश रहता था जैसे मे का मंथ फ्रेश होता है। मे इन यूरोप दिस इज टू मच कोल्ड इज देयर, बहुत ज्यादा सर्दी होती है। मे इज अ स्प्रिंग सीजन फॉर देम। जिस तरह के मे के मंथ में फूल हर चीज खिल जाती है, हर चीज खूबसूरत होती है, और इस स्क्वायर को देखकर बिल्कुल ऐसा दौर याद आ जाता है। वंस यू हैव रेड शेक्सपियर्स थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ, and there was a lover, and he was hot, and he was like furnace,
तो मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन दी थी। मैंने कहा शेक्सपियर का जो ये लवर है, ये मैं रिमाइंड कराता है चौसर ऑफ स्क्वायर ऑफ चौसर। तो ये वो स्क्वायर है। तो ये दोनों कपलेट अहम हो गए सिंगिंग से लेकर मंथ ऑफ मे तक। शॉर्ट वॉज हिज गाउन एंड हिज गाउन वॉज शॉर्ट विथ स्लीव्स लॉन्ग एंड वाइट एंड ही हैज अ लॉन्ग स्लीव्स, white sleeves were over there. Well could he sit on horse and fair ride, and he can also ride on the horse, and well he could ride. इंग्लिश पीपल के अंदर ये भी एक चीज है कि वो घोड़सवारी के अंदर भी ग्रेस देखते हैं कि कौन घोड़सवारी कितने ग्रेसफुल तरीके से करता है। तो ये स्क्वायर जो है इसको मैनर्स आते हैं घोड़सवारी के, और अच्छी घोड़सवारी करता है। आपको याद होगा बेयर के अंदर वो पपुआ कहती है, वो कहती है कि देयर वाज ग्रेस इन हिज राइडिंग, कहती है आई थिंक सो, कि उसकी घोड़सवारी में कितनी ग्रेस थी, वो कहती है। सेम इज द केस ओवर देयर, और इसकी ग्रेस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेस है जब वो घोड़सवारी करता है, राइड करता है, घोड़ा बैठता है। तो दिस कपलेट द लास्ट which I have just translated, that is also important one. A long and white, fair right, this couplet. He could, yes, short was his gown was short, छोटा गाउन पहना हुआ था उसने, कपड़े छोटे साइज में थे। with sleeves long and wide, sleeves खुली खुली थी, ये उन दोस्त दौर का फैशन था। ये बाजू खुले थे, बाजू खुले थे, और कमीज छोटी थी। that was a fashion of those days, और उस दिनों उसने ये फैशन किया हुआ है। अब हमें एट द सेम टाइम 14th सेंचुरी की रिप्रेजेंटेशन भी मिल गई है कि 14th सेंचुरी के अंदर किस तरह लोग रहते थे, किस तरह का फैशन अपनाते थे। he could songs make and well indite, और वो अच्छे तरीके से गीत गा सकता है। indite मीन राइट, और अच्छे से गीत लिख भी सकता है। joust and eke, joust mean with some gestures, with some manners. joust and eke का मतलब है कि एकदम से बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से, वाह वाह कमाल तरीके से, ये मीनिंग बनेंगे इसके। डांस, और बेहतरीन तरीके से डांस करता था। एंड वेल पोर्ट्रे एंड राइट, और अच्छे तरीके से कोई तस्वीर बना लेता, और अच्छे तरीके से वो कुछ लिख भी सकता था। गीत लिखता भी था, गीत गाता भी था, गीत की धुन भी बनाता था। सो हु ही लव्ड, और मोहब्बत करता था। ओहो हो, बड़े हॉट तरीके से मोहब्बत करता था। डेड बाय नाइट टेल, रात के वक्त खास तौर पर उसकी मोहब्बत भड़क जाती थी। He sleep no more than doth nightingale, और वो जिस तरह के सारी रात बुलबुल जागता रहता है, वो बुलबुल से ज्यादा देर नहीं सोता था। बुलबुल की तरह वो भी सारी रात जागता रहता है। यानी कि उसने एक इशारा दिया है, आप बुलबुल में भी रात को सो जाता हो या ना सोता हो, लेकिन इशारा दिया है कि बुलबुल, आप देखते हैं नाइटिंगेल, उसका सीना जो है रेड होता है, लुकिंग लाइक अ पैशनेट लवर। दैट इज सिंबलिज्म, बेहतरीन सिंबल इस्तेमाल किया है। और नाइटिंगेल की तरह हर वक्त चूं चूं करता रहता था, गीत गाता रहता था मोहब्बत के, खुशी के, और रात को बेचारा सोता भी नहीं था। और उन दिनों तो ना डेजिपाम थी, ना 81 थी, ना वॉल्यूम 10 थी, ये सारे नींद की गोलियों के नाम है। कोटीज ही वॉज, और ही वॉज पोलाइट। कोटीज ही वॉज पोलाइट, अखलाक अच्छा था। लॉली एंड मोडेस्ट मीन के बाहया किस्म का आदमी था। एंड सर्विसेबल, और सर्विसेबल भी था। देखो एट द सेम टाइम एक शख्स के में कई क्वालिटीज हो सकती हैं। ही वॉज लस्टी, he was not the apt son of night, maybe because he is not a warrior altogether. He has also love affairs, he is also dancing, writing poems, and he is also modest too, बाहया भी है। एट द सेम टाइम एक शख्स के अंदर सारी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है। and cough before his father at the table,
खाफ मीन काटना, बिफोर सामने, हिज फादर अपने बाप के, एट ए टेबल खाने की टेबल पर। ये एक राइट था, ये एक कस्टम था कि जब नाइट के यहाँ, किसी नाइट के यहाँ कोई मेहमान आता था तो उसका बेटा तमाम लोगों को वो गोश्त के टुकड़े कर कर काट कर पेश किया करता था टेबल पे बैठकर। तो बताया जा रहा है कि इसके अंदर बड़ा अच्छा सलीका था कि जब गेस्ट आ जाते थे नाइट सारे, तो ये स्क्वायर टेबल पर बैठकर अपने बाप के सामने बहुत अच्छे तरीके से गोश्त को काटता था। दैट कैन बी इट्स मीनिंग। एक और मीनिंग हो सकते हैं पॉसिबल, बट दीज आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग वन। वो ये कि अपने फादर के सामने बैठकर वो टेबल के ऊपर बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर लेता था। दैट इज नॉट पॉसिबल। मोस्ट प्रोबेबल थिंग इज दैट वो अपने बाप के सामने गेस्ट की कंपनी में अच्छे तरीके से गोश्त काट कर सबको पेश कर सकता था। क्लियर? तो नाइस सत्य।